There has been a terrible tragedy at the Mahakumbh, and the casualty figures were put out by the UP government some time back, and most unfortunately 60 people are injured and 30 people are feared dead in this terrible tragedy which happened because of a stampede. The stampede happened around 1:30 to 2 a.m. when a whole ocean of devotees converged at the Sangam to take a holy dip on the occasion of Mauni Amavasya. Ladies and gentlemen, Mauni Amavasya is a very significant day dedicated to the ancestors, and it is believed that bathing in the sacred Sangam on this day brings virtue and salvation. And this incident happens at the Akhada Marg as a huge number of people move towards the Sangam nose. Viewers, between 8 to 10 crore devotees are in Prayagraj today, and the police was trying its best to handle the situation. Ladies and gentlemen, till 6 p.m., about 6.99 crore devotees, that's almost 70 million people, took the holy dip. Yesterday, there were almost 6 crore people, 5.7 crore. 10 crore devotees were expected on Mauni Amavasya. There are 50,000, you see the pictures, the drone visuals, 50,000 police personnel are deployed. Forces from 70 districts are deployed. There are 2,751 CCTV cameras. There are drones to monitor the crowd. And the police had put out a warning. I want to play out now when Police Commissioner Vijay Vishwas Pant is seen urging the devotees to take the holy dip quickly, warning about a potential stampede. He is requesting the devotees, please do not wait at one point. Get up, take a bath and move on, because a huge crowd is coming, and the people who are not moving on are risking a potential stampede. The visuals on your screen, ladies and gentlemen. And now please listen to the soundbite which tells you the kind of concern the police themselves had, as some devotees were not listening to the request being made by the administration. सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। Now, ladies and gentlemen, I want to show you a 1 minute, 10-second video approximately. We can take it full frame and I will read over it. In this video, which is now playing on your screens, you are seeing how thousands of people are proceeding towards the Sangam. You see, a lot of devotees had gathered on the Sangam Ghat, but instead of going for the Shahi Snan, many were sleeping on the banks. The police can be heard appealing to the devotees to wake up and go and take their holy dip. The police, while announcing the death toll, said that due to the vast number of devotees pushing against the barricades at Akhada Marg, some barricades broke. You will see that how there are all the policemen who are standing there literally trying to push back against the barricade. But there were people, so many people, that the people were rushing through the broken barricades. So when the barricade breaks, where the arrow is pointing right now, the people pushing, so many people pushing, the barricade breaks. And this video shows the amount of crowd that was present there, and how despite the significant police deployment, the devotees overpowered the barricades. And senior administrative officers and police officials reached the site, but this is the moment when the barricade breaks and all chaos begins to break out. And then the devotees move towards those who are asleep, and that is when the stampede happens. It's a most unfortunate situation, ladies and gentlemen, but this is the truth about what happened. Now, ladies and gentlemen, I think we have one more soundbite to play. Do we? We have the soundbite of Yogi Adityanath,
who was in tears while talking about an hour back about what happened. He's been making a lot of arrangements, has done the very best that he can, but I think this has been a personal setback for him as well. And I'd now like to run the reactions of Chief Minister Yogi Adityanath to this unfortunate incident at the Mahakumbh today. घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। And joining me first, ladies and gentlemen, is Republic Bharat reporter and anchor Priyanka and reporter and anchor Ritu, who are patched live from Mahakumbh. पहले प्रियंका आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि आप अगर बताएं कि आपकी लोकेशन क्या है और जिस लोकेशन में आप हैं वहाँ पे कैसी व्यवस्था है और कितनी दूर है जहाँ से एक हादसा हुआ, वहाँ से कितनी दूर है और अभी स्थिति कैसी है। जितने लोग महाकुंभ में जाने वाले हैं, कई लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो जानना चाहेंगे कि अभी स्थिति कैसी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर यानी कि बड़े हनुमान मंदिर के ठीक बाहर, और यहाँ से संगम नोस की जो दूरी है वो हार्डली 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर ये पूरी भगदड़ हुई थी। स्टैम्पेड इस कदर हो गया था कि एक ही जगह पर बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ क्राउड जो है इकट्ठा हो गया था और पुलिस कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि लगातार ओवरवर्क्ड पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा था, उसको कैसे कंट्रोल करना है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती साबित हो गया था। आपको बता दें हर किसी को सिर्फ संगम नोज में ही स्नान करना था, क्योंकि संगम नोज में कहा जाता है 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और मौनी अमावस्या पर उसी संगम नोज में स्नान करने का एक अलग महत्व माना जाता है। तो एक ही रूट बना दिया गया था एंट्री और एग्जिट के लिए। बाकी जितने पीपा पुल्स बनाए गए थे, बाकी और एंट्री एग्जिट के रूट से वो सब ब्लॉक्ड कर दिए गए थे। 0 व्हीकल जोन हो चुका था। तो ऐसे में लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। अगर एक ही रास्ते जाना है तो सभी वहां उसी तरफ जा रहे थे, भगदड़ मचती जा रही थी। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें, कल तो यहाँ पर भी पांव रखने की जमीन नहीं थी, लेकिन जगह नहीं थी। लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम पूरी रात भर इसी रास्ते से आगे चलते हुए एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर इस वक्त मौजूदा हाल बने हुए हैं। क्योंकि मौनी अमावस्या एक शाही स्नान माना जाता है, अमृत स्नान माना जाता है, इसको लेकर ज्यादा क्रेज लोगों के भीतर रहता है। अब स्थिति बैक टू नॉर्मल की तरफ हो रही है, अब सब कुछ कंट्रोल हो चुका है। कहीं पर भी लोग
लोग इकट्ठे ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए उन्हें डिस्पर्स किया जा रहा है। इसीलिए अब कई रूट्स खोल दिए गए हैं। अब एक जगह से उनकी एंट्री और एग्जिट नहीं है, अलग अलग पुल से वो आ जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात करें तो 360 ट्रेन चलाई जा रही है ताकि रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो। कल जो भी भगदड़ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ की एक जगह इकट्ठा होने की वजह से हुई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, कनेक्टिंग विद अस ऑल्सो। बिफोर आई गो टू आवर नेक्स्ट ग्राउंड रिपोर्ट ऑन दिस विच विल बी फ्रॉम रितु, आई वुड लाइक टू गो अक्रॉस टू महंत रविंद्र पुरी जी, हु इज द अध्यक्ष ऑफ द अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। नमस्कार महाराज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। धन्यवाद। तो ये जो घटना हुई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा इंतज़ाम हुआ, उसके बावजूद ऐसा हादसा कैसे हो गया महाराज जी? ये हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था ऐसा होगा जी। हमने दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना की थी। सरकार हो, संत हो, सभी ने चाहा था हम ऐसा मैसेज जी ना भूतो ना भविष्यति, पर ये हमारी बदकिस्मती रही। ये जो घटना घटी, ऐसा भी हो सकता न जाने किसकी नजर इस महाकुंभ में लग गई। और आपने देखा होगा हमारे पीछे जितने विरोधी पहले से ही पीछे पड़े थे, किसी ने कहा था वहां पाप धोने गए हैं, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कहा था ये बीमार वहां हो जाएंगे, किसी ने कहा था वक्फ बोर्ड की जमीन है। दुनिया भर के आरोप हमारे मेले पे लगाए गए थे। और मैं यही कहना चाहूंगा, हमने जो प्रयास किए थे, सरकार हो, अखाड़े हो, हमने एक ऐसे हमने सोचा था ये बहुत बड़ा महाकुंभ होगा, और महाकुंभ तो था ही 140 साल के बाद आया था। हमें कुछ बहुत दुख हुआ जब हमने ये देखा ये जो अप्रिय घटना जो घटी, लेकिन आप इसके लिए क्या करें? मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार ने पूरी व्यवस्था रखी थी और पुलिस ने पूरा अच्छा कार्य किया था, परंतु अचानक से जो ये भीड़ आई करोड़ों की संख्या में, यहाँ पे जो ये घटना हुई, इसके लिए हम सब दुखी है, हम सबको खेद है। हम क्या कर सकते थे? और मैंने देखा है हमारी पुलिस इतनी चौकस थी, हमारे अधिकारी इतने चौकस थे, चप्पे चप्पे पे सबकी निगाह थी। लेकिन जब ये भीड़ आ गई, तुरंत ये धक्का मुक्की हो गई, धक्का मुक्की जो है दुर्घटना में बदल गई। हम सब दुखी है, हम सबको पीड़ा है कि यहाँ से एक अच्छा मैसेज जो हम देना चाहते थे वो हम दे न पाए। जी, बहुत दुखद घटना है। मान जी, एक और सवाल आपसे ये है कि जो पुलिस वहाँ पे एक वीडियो भी अभी वायरल हो रही है जहाँ पे कमिश्नर जो हैं वो हाथ जोड़ के जितने वहाँ पे श्रद्धालु हैं सबको कह रहे हैं कि आप प्लीज़ आगे निकलिए, क्योंकि पीछे से भीड़ आ रही है और आप इधर लेट मत जाइए, सो मत जाइए, नहीं तो आपके ही सेफ्टी को लेके चिंता है। तो जितने श्रद्धालु थे, क्या मैसेज उनको नहीं गई या इन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया? इसका क्या कारण था? मैसेज सब में गया था, हमने बार बार मैसेज दिया था, हमने पूरा प्रयास किया था। जो भीड़ थी हमने अपने पंडालों में रुकाने का प्रयास किया, हमने भीड़ के लिए लंगर खोलने का प्रयास किया, लंगर भी हमने खोले, भंडारे हमने खोले। और भीड़ भी इतनी हो गई थी कि ऐसी भीड़ हमने भी जीवन में पहली बार देखी। जब इतनी भीड़ हो जाती है धक्का मुक्की में, ये भीड़ इतना बड़ा हमको ये दाग लगा देगी, हमने कभी सोचा नहीं था। और भीड़ भी आप देखेंगे पूरे प्रयागराज में कहीं करोड़ों की संख्या में भीड़ थी। जहां भी आप जाते भीड़ ही भीड़ देखते, सिटी में जाएं वहां भी भीड़, मेला क्षेत्र में वहां भी भीड़। और मैंने ये देखा था जब मैंने लोगों को पूछना शुरू किया था कि आप कहां से आए, लोगों ने कहा हम केरल से आए, लोगों ने कहा हम कर्नाटक से आए। इस बार पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा प्रयागराज में था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ऐसा लग रहा था प्रयागराज अलग से एक देश गया है। इतनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए थे। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। जब भीड़ धक्का देती है उस समय भीड़ ये नहीं देखती कि हम क्या कर रहे हैं, वो धक्का मुक्की में ही ये जो भीड़ ने ये जो भी कुछ हुआ, ये जो कांड हुआ, ये बहुत दुख का विषय है। हमें खुद इसके लिए हम बहुत दुखी है, क्योंकि जो हमारा प्रयास था, जो ये मेला हो, भव्य मेला हो, इसमें जो भी ये दाग लग गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं? जी, और ये बड़ी बात ये भी है कि कई अखाड़े उन्होंने कहा कि हम अमृत स्नान नहीं करेंगे, ताकि जितने श्रद्धालु हैं उनको उन पर फोकस की जाए। तो
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऐसा कहा था। मैंने जी। सुबह कहा था कि भाई पहले जो श्रद्धालु जब हमारे कम हो जी। जाएंगे उसके बाद हम स्नान देख लेंगे, नहीं तो जी। हमें स्नान की आवश्यकता नहीं है। इनका स्नान हो जाए, हमारा स्नान हो गया। परंतु उसके बाद जो प्रशासन ने ये कहा कि नहीं आप लोग स्नान करो, जी। उसके पश्चात हमने 2 बजे स्नान किया है और जितने भी हम अखाड़े थे सबने स्नान जी। कर लिया। और अब जी। इस समय जो है स्थिति बिल्कुल ठीक है, भीड़ भी अब छट गई है। मेरा ये मानना है कि अभी इस समय पूरे जितने भी श्रद्धालु है आराम से स्नान कर रहे जी। और आ भी रहे जा भी रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अभी ऋतु हमारे साथ है, रिपोर्टर एंकर रिपब्लिक भारत के ऋतु। शी इज जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन राइट नाउ। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, द पॉइंट इज दैट इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम पीपल। ये कहना कि कोई इसके लिए जिम्मेदार है, पुलिस ने काम नहीं की। पुलिस ने वार्निंग दी, पुलिस लगातार वार्निंग दे रही थी। अभी किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता कि श्रद्धालु वहाँ पे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे थे, मगर ये तो था कि 8 से 10 करोड़ लोग वहाँ पे उपस्थित थे। स्नान के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मगर सवाल ये है ऋतु, क्या श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए क्या पुलिस कम थी? ये सवाल, इस सवाल का जवाब क्या है? आप भी तो ग्राउंड पे थे, तो आपने क्या देखा ऋतु जी? बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा, और सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगी कि रिपब्लिक की सबसे बड़ी जो टीम है वो ग्राउंड पर मौजूद है। हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जब हमने पीड़ितों से बातचीत की तो उन्होंने यहाँ पर ये जानकारी दी कि जो आने और जाने का जो रास्ता है वो एक ही कर दिया गया था और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जो व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं ना काफी साबित हुई, कम साबित हुई, और उसकी वजह से यहाँ पर जो भीड़ है वो ज्यादा हो गई, भीड़ बेकाबू हो गई। संगम मार्ग की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, चौक हो गया। लिहाजा जो तस्वीर निकल कर सामने आई भगदड़ की, वो अपने आप में दर्शा रही थी उस मंजर को जो कि नजर आया था। हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात बने थे, भगदड़ की स्थिति बनी थी, लेकिन बेहतरीन व्यवस्था दूसरी तरफ की गई है। 3 दिन से लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है, जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा था। करोड़ों की संख्या में हर दिन यहाँ पर लोग जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए तो पहले से ही है, और आज क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान था और इस लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। आज इस वजह से जो भीड़ है वो बेकाबू संगम नोच पर हुई। समय 1:30 से 2 बजे का बताया गया जब ये भगदड़ हुई थी। बताया गया कि आने और जाने का जो मार्ग था वो दोनों ही एक तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया, जिस वजह से जो भीड़ है वो चौक होती गई और इस वजह से लोग जो है एक के ऊपर एक फांदते गए। और यही वजह है कि जो ये भगदड़ सामने आई है, कई लोग घायल भी हुए। ये तस्वीर अपने आप में दर्शा रही है उस दृश्य को, उस मंजर को, उस दौरान क्या हुआ होगा। पीड़ितों से जब मैंने बातचीत की, उन्होंने अपना दर्द बयां किया, कहा कि उस वक्त क्या हुआ था। पुलिस प्रशासन वहां पर कहीं ना कहीं जो फेल एक तरह से साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि इतनी भारी संख्या में वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी। एम्बुलेंसेस को बुलाया गया। हम सबसे पहले वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, लगातार हम वहां पर डटे हुए थे। 1:30 बजे का समय था, 2 बजे तक के बीच ये भगदड़ मची। और आपको तस्वीर बता दें कि एक के ऊपर एक जो है वो ट्रिप कर लोग बढ़ रहे थे। ये तस्वीर अपने आप में बेहद जो तस्वीर है अपने आप को दर्शा रहा था कि किस तरीके से वहां पर मंजर रहा होगा। जो लोग वहां पर एकत्र हुए थे, मौनी अमावस्या का स्नान था, लोग उसी में स्नान करना चाहते थे, संगम में स्नान करना चाहते थे। गंगा, यमुना और सरस्वती का वो संगम है और वहीं पर लोग चाहते हैं कि हम स्नान करें, क्योंकि 144 साल का संयोग है और 144 साल के संयोग में आस्था का गोता खाना चाहते हैं। लिहाजा उसी स्थान पर लोग स्नान करना चाहते थे। अपार संख्या में रोड पर भी हमने देखे 1 बजे 1:30 बजे के दौरान भी हम लगातार यहाँ पर डटे हुए थे। लोग सड़कों पर सोए हुए नजर आए, उन्हें भी हटाने की कोशिश लगातार पुलिस प्रशासन कर रही थी। हालांकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो भी हमने देखा कि किस तरीके से किया गया। रात भर यहाँ पर पुलिस की तरफ से गाइडलाइंस भी दी जा रही थी कि लोगों को सड़कों पर ना इकट्ठा होने दिया जाए, और सुबह भी जब यहाँ पर लोग पहुंचे स्नान के लिए उन्हें भी वहां से हटाया जा रहा था, मार्ग से, लाइनों से, कतारों से वहां से हटाया जा रहा था। लेकिन जो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई वो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ फेलियर जरूर रहा है, और तस्वीर अपने आप में ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं
कोई कमी तो रही है, और यही कमी जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ भी तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने जो जांच के लिए यहाँ पर तलब कर दिया है और जांच भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की सीएम योगी आदित्यनाथ से, इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी बातचीत की है। तो आप लिहाजा समझ सकते हैं, हम हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, हॉस्पिटल का भी रुख किया था, मैं खुद वहां पर मौजूद थी और वहां पर मैंने देखा था किस तरीके से एम्बुलेंसेस आ रही थी और वहां पर जो घायल है, जो इंजर्ड लोग थे वो पहुंच रहे थे प्राथमिक उपचार के लिए, उन्हें उपचार दिया जा रहा था और वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद लोगों को वहां से हटाया जा रहा था क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा थी, लोगों को मैनेज करना वहां पर भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। अब जितने लोग आ रहे हैं, सवाल ये है, मैं प्रियंका से पूछना चाहूँगा, हमारी जो संवाददाता हैं, कि प्रियंका जी ये वहाँ पे अब कितने लोग आ रहे हैं, क्या लोगों की संख्या अभी भी उतनी है और आने वाले दिनों में अनुमान क्या है, क्योंकि ये मैक्सिमम भीड़ तो आज और कल की थी, अब आने वाले दिनों में एस्टिमेशन क्या है, अनुमान क्या है, कितने लोग होंगे, किस तरह का इंतज़ाम है, और जितने लोग जा रहे हैं, जितने लोग देश विदेश में महाकुंभ जा रहे हैं, उनके परिवारजन उनको ये जानकारी बहुत ज़रूरी होगी। कुछ कहना चाहेंगे आप प्रियंका जी? बिल्कुल इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबको पता होना चाहिए कि कितने डिवोटीज यहाँ पर और आ सकते हैं। तो वो 45 से 50 करोड़ का जो एक आंकड़ा है वो एक रखा गया है, यानी कि 45 से 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अगर हम सिर्फ मौनी अमावस्या की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो एक दिन में संगम में स्नान करके जा चुके हैं। आप सोचिए 3 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, इसको पार कर चुके हैं और ऑफिशियली धीरे धीरे जब ये आंकड़ा अपडेटेड हुआ तो वो 8 करोड़ हो गया। आप सोचिए 8 करोड़ की अगर हम बात करें तो किसी एक राज्य की आबादी होती है, चाहे फिर हम वो टोक्यो की, दिल्ली की बात करें या किसी और देश की बात करें, टोक्यो की बात करें, शंघाई की बात करें, तो यहाँ की आबादी इतनी है जितना यहाँ पर एक दिन मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए संगम में। लेकिन आपको बता दें आने वाले दिनों में ये संख्या अब धीरे धीरे उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि सबको क्रेज जो रहता है वो मौनी अमावस्या का ही रहता है। हालांकि 26 फरवरी तक ये पूरा महाकुंभ चलेगा अब, लेकिन उतना ज्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा जितना मौनी अमावस्या के दिन था। और अभी तक अगर ओवरऑल हम देखें तो 28-29 जनवरी तक जो है 19 करोड़ लोग जो है अब तक वो यहाँ आ चुके हैं संगम नगरी में और यहाँ स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा अभी 40 करोड़ को पार कर सकता है। लेकिन ऐसे में अगर व्यवस्था की बात करें, ये बहुत जरूरी है लोगों को ये समझना कि पुलिस के साथ आर्गुमेंट ना करें। जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहे जा रहे हैं कि काइंडली फॉलो दिस, उसमें आर्गुमेंट ना करें। क्योंकि कल बीते दिन ये हुआ कि बैरिकेड जहां लगे हुए थे, लोगों ने आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया, बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी बात से और ज्यादा जो बाकी लोग थे वो भी बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ गए थे। तो अभी इन सब चीजों पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब उतनी ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ेगी क्योंकि आप देखिए कल हम जब रात को यहाँ पर मौजूद थे जो अलग जी अब देखिए यहाँ पर खाली है, तो यानी कि कंट्रोल्ड है अब कंडीशन। जी बिल्कुल धन्यवाद। राजशेखर स्वामी जी फ्रॉम वज्रादही मठ इज जॉइनिंग अस और हमारे साथ महावीर गुरुजी भी हैं जो राजस्थान से हैं। पहले मैं राजशेखर स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम और चरण स्पर्श। ये मुझे प्लीज़ बताइए कि अभी वहाँ पे आप भी महाकुंभ में हैं और महावीर गुरुजी भी महाकुंभ में हैं। ये जो हादसा हुआ इसके बाद ये क्यों हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में जो महाकुंभ का है जो उत्साह है इस पर थोड़ी तो मतलब इफ़ेक्ट होगी, आप कैसे देखते हैं, ये क्यों हुआ, व्यवस्था क्या है, इसमें गलती किससे हुई, आप इसको मतलब आपका अनुमान क्या है, क्यों हुआ? सतीर्थराजो जयति प्रयागः अत्यधिक भीड़ होने के कारण और लोगों में अत्यंत उत्साह के कारण, श्रद्धा के कारण, अत्यंत भावना के कारण लोग अपने को रोक नहीं सके। रात्रि में इतने लोग, इतने श्रद्धालु लोग वहां संगम त्रिवेणी जो नौज में पहुंच जाएंगे किसी को आशा भी नहीं थी, और वहां पहुंचने के बाद ऐसी भगदड़ हो जाएगी कभी कल्पना नहीं की गई थी। क्योंकि आज तक के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था महाकुंभ की इस बार माननीय मोदी जी और योगी जी ने किया और शासन प्रशासन ने किया है। लेकिन
अत्यंत लोगों ने भावना के कारण वहां जाकर के ऐसी परिस्थिति बनी है, फिर भी अत्यधिक भीड़ होने के कारण बहुत जल्दी कंट्रोल किया गया और चारों तरफ सीमाओं को सील कर दिया गया, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाव हुआ। और हम लोग तो यानी हमारा शिविर सेक्टर 17 में है, अशरफी भवन शिविर में कम से कम 5000 लोग रुके हुए हैं। हम लगातार प्रतिदिन लोगों को सूचित कर रहे थे कि जो आप लोग इसी गंगा के घाट में स्नान करिए, वहां त्रिवेणी में कोई नहीं जाएगा। और सबने हमारी बात मानी, एक भी व्यक्ति यहाँ से संगम में नहीं गया, तो सभी सुरक्षित हैं। आज सभी धर्माचार्यों और सभी जो विशिष्ट लोग हैं, सबको ये सूचना जनता को, अपने अपने प्रेमी लोगों को देना चाहिए कि धीरे धीरे करके आवे, कोई जो पर्व है उसमें इकट्ठा नहीं आवे और सबके अंदर संवेदना होनी चाहिए। जो ये लोग अभी राजनीति कर रहे हैं जैसे, और मैं सवाल अभी हमारे साथ जो बात कर रहे हैं लाइव, वो श्रीधाचार्य जी महाराज, इन्होंने कहा कि बिल्कुल उत्तम अरेंजमेंट्स किए गए हैं, तो फिर राजशेखर स्वामी जी अभी राहुल गांधी वगैरह इस पर टूट पड़े और कह रहे हैं ये पीआर है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वीआईपीज़ की व्यवस्था है इसलिए हादसा हुआ। मुझे तो लगता है कि इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मगर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें? मैं राजशेखर स्वामी जी आपसे पूछ रहा हूँ। जी अभी तो पॉलिटिक्स का इरादा नहीं करना चाहिए, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सोच के बताना चाहिए। इतना लोग इधर से जा रहा है, क्यों रोम को जा रहा है, उसका विचार का बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं उसका चिट नहीं खोलेंगे। तो हमने इतना कोशिश करता है, हमारा आस्था बहुत बढ़िया है, बहुत साल से ये आस्था चल रहा है। इतना आदमी लोग, करोड़ों करोड़ों लोग भक्त लोगों ने वो पुण्य स्नान कर रहा है, इसकी आप क्यों आप बात कर रहे हैं? तो आपको राजनीति में चलना चाहिए, राजनीति करो, तो आपको बात करना चाहिए तो करो, उस वो करने के लिए संसद है तो उधर करो। ये भीड़ का बारे में ना, तो हमारा हिंदू आस्था का बारे में क्यों आप बात कर रहे हैं? पैसा नहीं करेंगे। और राहुल जी को भी बोलना चाहिए, राहुल जी ने अमेरिका में जाके हमारा विचार के बारे में बात कर रहे हैं, वो एकदम गलतियां है। हमारा राष्ट्र को नीचे अखड़े में जाने के लिए आप कोशिश मत करें, क्योंकि भारत का व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, और हमारा नागरिकता है, हमारा सिविलाइजेशन है बहुत बढ़िया है, बहुत नाजुक भी है, वो सांस्कृतिक परिक्रम में चल रहा है। अभी जो हमारा कुंभ मेल चलता है एक सांस्कृतिक परिक्रमा में चलता है, तो ये सांस्कृतिक परिक्रमा जो है ये सनातन आस्था है, बहुत सालों से ये भीड़ लग रहा है। अभी तो हमारा टेक्निकल युग अच्छी चल रहा है, उसकी वजह से पूरी जग का जमाना इसको देखता है, तो इसकी वजह से आज चोटी क्या भी हुआ हमारा एक संसार में 10-15 लोग रहेंगे, तो उनको समझने का हमको बहुत इकट्ठा हो रहा है और बहुत संकट हो जाए। तो इतना करोड़ों तो एक उत्तर प्रदेश सरकार और हमारा केंद्र सरकार दोनों मिलके, मोदी जी और योगी दोनों मिलके इतना अच्छा सुविधा किया है, उसको आप प्रशंसा करना चाहिए और ये सरकार को आप तारीफ करना चाहिए बोल के मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मैं विनंती कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। राजशेखर स्वामी जी और श्रीधराचार्य जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आपने जो बात सामने रखी कि ये समय भी नहीं है, उचित भी नहीं है राजनीति करने की, ये इस बात, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। Ladies and gentlemen, I will pick on this issue once again at 9 o'clock, and I think it's very shallow. You know, this is the largest human spiritual congregation in history. There are 45 to 50 crore people who will be there. In a single day, there are 8 crore plus devotees who are taking the snan. So this is a massive event, and Rahul Gandhi should desist from commenting where it is not necessary. That is my only request. He can keep quiet.